Hello guys, welcome to our channel. Welcome to Study Bus. Today we are going to start the next topic of the women caste and reforms. That is chapter number 8 of your class. And let's start. Uh, Yesterday we make a second part. If you didn't watch that part, please watch. So at last class we complete till here. Now, today we are complete. Girl beginning to go in the school. So let's start. School. Many of the reformers felt that education for girls was necessary in order to improve the condition of women. Vidyasagar in Calcutta and many other reformers in Bombay set up schools for girls. When the first schools were opened in the mid-19th century, many people were afraid of them. They feared that schools would take girls away from home, prevent them from doing their domestic duties. Moreover, girls had to travel through public places in order to reach school. Many people felt that this would have a corrupting influence on them. They felt that girls should stay away from public spaces. Therefore, throughout the 19th century, most educated women were taught at home by liberal fathers or husbands. Sometimes women taught themselves. Do you remember what you read about Rashsundari Devi in your book Social and Political Life last year? She was one of those who secretly learned to read and write in the flickering light of candles at night. So, we in last class we will studying about the Swami Dayanand Saraswati and Ishwar Chandra Vidyasagar, how how they sorry, Ishwar Chandra Vidyasagar and Swami Dayanand Saraswati. He is Ishwar Chandra Vidyasagar and he is Swami Dayanand Saraswati. Okay, sorry. Girl began to go in school. Girls started in that at that time. Girls started to go into school. Vidyasagar in Kolkata, any reformers, Bombay set up a school for mainly in this paragraph. It was saying that in mid 18th century. It is very important. Okay, in mid 19th century, the girls were starting to go into school. The first school was set up. Then जो घर के लोग थे उनको डर लगने लगा कि स्कूल्स जो है वो गर्ल्स को घर से दूर ले जाएगी और प्रिवेंट करेगी डोमेस्टिक। फिर डोमेस्टिक घर के काम काज कौन करेगा। मोर ओवर गर्ल हैड टू बी ट्रैवल थ्रू पब्लिक प्लेसेस इन ऑर्डर टू रीच स्कूल, और उन लोग को पब्लिक प्लेसेस से जाना पड़ेगा। at that time it is also a very big problem because पब्लिक प्लेसेस से जाना गर्ल्स का उस टाइम की सोसाइटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। सो influenced on them. They felt that the girls stay away from spaces. वो सोचते थे कि गर्ल्स को पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जाना चाहिए और therefore thought in 19th century most education women we taught at home। और मेनली तो अगर इन्होंने भी इन्होंने ये भी सोचा तो कि गर्ल्स को पढ़ाना चाहिए, लेकिन इन्होंने कुछ अलग ही तरीका निकाला। इन्होंने ये तरीका निकाला कि गर्ल्स को घर पे बैठे बैठे student study लेनी चाहिए। Sometimes women taught themselves. Do you remember that what you read? And आपने लास्ट सेवेंथ क्लास में राज सुंदरी देवी के बारे में पढ़ा होगा अभी सोशल के बुक में। और ये भी वही है जो मेनली कैंडल की लाइट में पढ़ी हैं। और इन्होंने पढ़ा सबसे छुप के सीक्रेटली। सॉरी, इन Night. In the latter part of the century, schools for girls were established by the Arya Samaj in Punjab and Jyotirao Phule in Maharashtra. So it is very also important line. Highlight it. ठीक है। इन लेटर कुछ दिन बाद जैसे कि बॉम्बे में, कोलकाता में, इन सब में स्कूल सेटअप हुए इन मिड 19th सेंचुरी। फिर कुछ दिन बाद आर्य समाज जिनकी स्थापना हमारे दयानंद सरस्वती ने की थी शायद। मिनट आई कुछ हाँ, इन्होंने की थी।
दयानंद सरस्वती ने की थी। इन्होंने ये आर्य समाज की स्थापना की थी और इन्होंने ये कहा था कि विडोज भी रीमैरी कर सकती हैं। तो इन्होंने एक स्कूल सेटअप किया आर्य समाज के द्वारा पंजाब में, और ज्योतिराव फूले महाराष्ट्र। ज्योतिराव फूले एक बहुत फेमस एंटिटी हैं, ये मेनली आर्यन है, आर्यन। तो इसको एक और बार हाईलाइट करिए, और इम्पोर्टेंट लाइन है। ओके, आर्यन है ये। ओके। Maharashtra. In aristocratic Muslim households in North India, women learned to read the Quran in Arabic. They were taught by women who came home to teach. Some reformers such as Mumtaz Ali reinterpreted इन एरिस्टोटेबल की जो घर थे इसमें नॉर्थ इंडिया में मुस्लिम्स के जो हाउस होल्ड्स थे, उसमें वुमेन्स जो थी वो कुरान लर्न कर रही थी अरेबिक में, अरेबिक लैंग्वेज, मतलब उसको पढ़ रही थी अरेबिक में, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदूज में इतने रेस्ट्रिक्शंस थे, तो मुस्लिम की तो और अलग ही थी। मतलब मीन्स रिलीजन पे, रिलीजन में और कम माना जाता था, और उनको डिस्क्रिमिनेट, और उनको ये कुछ नहीं, मतलब कि उनको कोई कंपैरिजन ही नहीं था मेंस से, ठीक है, इस वजह से they thought that women come to teach, home to teach, women who came to home to teach। तो इन्होंने सोचा कि कौन हमें आके घर पे पढ़ाएगा, और उसी में से एक रिफॉर्मर थी मुमताज अली। मुमताज अली वॉज फेमस रिफॉर्मर, whereas reinterpreted verses from the Quran to argue for women's education. The first Urdu novels began to be written from the late 19th century. Amongst other things, these were meant to encourage women to read about religion and domestic management in a language they could understand. Women so they started to against the, they started to protesting against the all those things। they was saying, the women were saying that उन्हें उनके ऐसे लैंग्वेज में उन्हें कुरान चाहिए, और ऐसे लैंग्वेज में बुक्स चाहिए जो उनके समझ में आए, क्योंकि हम लोग को एजुकेशन मिलता नहीं था, तो इन लोग को पता नहीं था क्या सही है क्या गलत। ओके, तो मेनली ये यही कह रहा है। और इनको रिलीजन और डोमेस्टिक, उनको रिलीजन, उनके रिलीजन और डोमेस्टिक मैनेजमेंट को उनको उनके ही लैंग्वेज में चाहिए, ठीक है। सो इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है, और इसके मेन एंटिटी थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और आप डेट्स याद रखिएगा। बाकी अब न्यू टॉपिक वाज स्टार्टेड, इट्स वुमेन राइट अबाउट वुमेन। write about women from the early मेनली 20th देखिए, century. वुमेन राइट अबाउट वुमेन्स मीन्स, इसका जो मतलब है, ठीक है, ठीक है, इसका जो मतलब है, इसका है जो वुमेन्स थी, वुमेन्स थी उन्होंने, जो वुमेन्स थी उन्होंने उनके बारे में ही लिखा। ओके, मेनली इसका जो मतलब है, वुमेन जो थी उनके बारे में ही लिखा, ठीक है, जो वुमेन्स थी उनके बारे में लिखा, ठीक है, यहाँ पे पेश कर दो, ठीक है। यहाँ से मैं लास्ट में वुमेन्स ने उनके बारे में ही लिखा। Century, Muslim women like the Begums of Bhopal played a notable role in promoting education among women. They founded a primary school for girls at Aligarh. Another remarkable woman, Begum Rokeya Sakhavat Hossain, started schools for Muslim girls in Patna and Calcutta. She ठीक, ठीक है। मेनली क्या होता है इस लाइन्स में, बाई अर्ली 20th सेंचुरी, मेनली आप सेंचुरीज का ध्यान दीजिएगा, सेंचुरी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पर ये पूछ सकता है व्हेन इन फर्स्ट गर्ल वाज स्टार्टेड टू गोइंग स्कूल एंड ऑल दोज थिंग, ठीक है।
मेनली जो है, ये जो है मेनली अर्ली 19th सेंचुरी, ये जो अर्ली 20th सेंचुरी है, ठीक है, वुमेन्स गर्ल्स ने स्टार्ट किया था जाना अर्ली 20th सेंचुरी से, ठीक है। और इसी में मुस्लिम्स के बारे में, जैसे इधर का हम लोगों ने हिंदूज के बारे में पढ़ लिया, इधर मुस्लिम्स के बारे में पढ़ते हैं। मुस्लिम वुमेन लाइक बेगम ऑफ भोपाल, मुस्लिम वुमेन लाइक बेगम ऑफ भोपाल was played notable role in a promoting among the women, ठीक है, ठीक है। दे फाउंडेड द प्राइमरी स्कूल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूरा पैराग्राफ ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो बेगम ऑफ भोपाल, भोपाल की जो बेगम्स थी, उन्होंने नोटेबल रोल प्ले किया एट दैट टाइम, उस टाइम भी, जैसे उस टाइम इट इज़ अबाउट 20th सेंचुरी, तो उस टाइम भी डिक्लाइन हो रहा था। और और बेगम ऑफ भोपाल, कुछ बेगम्स होंगी छोटे छोटे एम्पायर की, और तो उन्होंने एक नोटेबल रोल प्ले किया, और उन्होंने एजुकेशन को प्रमोट किया, वुमेन्स के एजुकेशन को प्रमोट किया। दे फाउंडेड ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स, और इन्होंने प्राइमरी स्कूल खोला गर्ल्स के लिए अलीगढ़ में। अनदर रिमार्केबल वुमेन दैट इज बेगम रुकया, ठीक है। ये पहली वुमेन बेगम ऑफ भोपाल के बारे में पढ़ लिया। बेगम भोपाल की जो बेगम थी, जो और ये एक पर्टिकुलर है इनका ग्रीन, ठीक है। बेगम रुकया शखावत हुसैन, बेगम रुकया सखावत हुसैन ने स्टार्ट किया स्कूल फॉर मुस्लिम पटना और कोलकाता में, ठीक है। बेगम रुकया सखावत हुसैन, ठीक है। Calcutta. She. Fig. Fig. हाँ, सो देखिए ये फिगर है, मैं लास्ट में ये तो Fig. कंक्लूजन 5 Ishwarchandra Vidyasagar. Fig. 6 students of Hindu Mahila Vidyalaya, 1875. When girls' schools were first set up in the 19th century, it was generally believed that the curriculum for girls ought to be less taxing than that for boys. The Hindu Mahila Vidyalaya was one of the first institutions to provide girls with the kind of learning that was usual for boys at the time. ओके। देखिए ये जो है स्टूडेंट्स ऑफ हिंदूज महिला विद्यालय, इट इज अ स्कूल दैट वाज सेट अप इन 1875, ओके। 1875 की ये फिगर है, ये जो पिक्चर है ये 1875 की है। अगर मैं इसको, चलिए इसको ऐसे ही देख लेते हैं, ठीक है। इसको अगर यहाँ से कट करूँ, और ये देखिए, ये जो है ना, ये 1875 की पिक्चर है, ठीक है। 1875 की पिक्चर है, और इसमें स्टूडेंट्स जो हैं, स्टूडेंट्स ऑफ हिंदू महिला विद्यालय 1875, ठीक है। जो 1875 की ये पिक्चर है, और इसमें जो स्कूल्स में जो गर्ल्स थी, जैसे कि ये देख रहे हैं, ये सारी गर्ल्स हैं, मेनली ये बड़ी हैं, लेकिन उस टाइम की गर्ल्स ऐसे बड़ी हो जाती हैं, बच्चों को उस टाइम पहले पहले बड़ों को भेजना शुरू किया गया, फिर बच्चों ने, फिर बाद में ना वुमेन्स ने राइट किया, फिर बेगम रुकया शराफत हुसैन ने, सॉरी बेगम ऑफ भोपाल ने स्टार्ट किया प्राइमरी स्कूल बच्चों के लिए, बच्ची गर्ल्स के लिए, छोटे बच्चों की जो छोटी गर्ल्स हैं, जो बच्ची गर्ल्स हैं, इधर भी गर्ल्स हैं छोटी छोटी, जैसे देख लीजिए ये है, ठीक है। जैसे कि ये है, ये है, ठीक है, तो ये लोग भी हैं। और इसमें ये बताया गया है कि जो बेगम है, जो जैसे कि सॉरी 19th सेंचुरी में जनरली बिलीव दैट दिस करिकुलम ऑफ ओथ द लेस टैक्सिंग दैन द बॉयज, ठीक है। मेनली जो बॉयज हैं वो ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन ये जो था उस टाइम के, उस टाइम जब उन्होंने शुरू किया कि स्टडी गर्ल्स के लिए भी ज़रूरी है, उन्हें भी जानना चाहिए क्या है, तो ये उस टाइम के स्कूल्स की फोटो जब गर्ल्स स्टार्टेड की थी, तो उन्हें भी यही बताया जा रहा है कि यही वही नॉलेज दी जा रही है जो बॉयज़ को भी दी जा रही थी। मेनली इस फिगर में ये जो छोटा सा फिगर है, मेनली ये जो फिगर है, ठीक है, ये जो फिगर है इसमें यही बताया जा रहा है, ठीक है। थोड़ा अजीब हो गया, सॉरी, रुक गई।
इसमें यही बताया जा रहा है, ठीक है। सो और ये इम्पोर्टेंट है, इसको एक और बार देख लीजिए, वुमेन्स ने अपने बारे में ही लिखा, वुमेन्स ने अपने बारे में, मैंने इरेज कर दिया, सॉरी। 99 was a fearless critic of conservative ideas, arguing that religious leaders of every faith accorded an inferior place to women. ओके, देख लो, शी वॉज अ fearless, जो बेगम रुखिया उस सखावत हुसैन थी, वो एक fearless क्रिटिक थी, कंजर्वेटिव आइडियाज गर्ल्स के लिए बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज देती थी, उनके एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, और आर्गुइंग द रिलीजियस लीडर ऑफ एवरी फेथ अकॉर्डेड टू इंफीरियर प्लेस टू वुमेन, और सबको ये कहती थी कि कोई भी वो नहीं है, सब इक्वल है, वुमेन्स भी इक्वल है, और एवरी रिलीजन में वुमेन्स इक्वल है, उनको भी इंफीरियर ना समझा जाए। बाई 1880s, 1 मिनट माइक्रो रीड, ये रीड करेगा। Women. By the 1880s, Indian women began to enter universities. Some of them trained to be वेरी doctors, इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बाई 1880s, इसमें क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, पिंक, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बाई 1880s गर्ल्स ने स्टार्ट किया यूनिवर्सिटी जाना, जहाँ पे आज हम जाते हैं। doctors, some became teachers. Many women began to write and publish their critical views on the place of women in society. Tarabai Shinde, a woman educated at home at Pune, published a book, देखिए 1880 सम ट्रेंड एज डॉक्टर, इन्होंने कुछ डॉक्टर बने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या क्या बन सकते थे, लेकिन इतना भी इम्पोर्टेंट है, सेम इम्पोर्टेंट है, तो इसको ये से कर देते हैं। मैनी वुमेन राइट क्रिटिकल पब्लिश, एंड उसी में से सोसाइटी के बारे में लिखा, और प्लेस ऑफ व्यू, मतलब कि कैसे व्यूज़ थे सोसाइटी के उस टाइम वुमेन्स के, उसके बारे में लिखा। अब देखिए ताराबाई पंडित सिंह, ताराबाई सिंधे, ये सिंधे मतलब ये महाराष्ट्र की मेनली लेडी हैं, और इन्होंने क्या क्या किया इनके बारे में पढ़ते हैं। book, Stripurushtuna, a comparison between women and men, criticizing the social differences between men and women. देखिए ये जो ताराबाई सिंधे है, ये एक वुमेन है, एजुकेटेड एट अ पूना, पूना जो मुंबई में है, पुणे आज जाना जाता है, पूना होम एट पूना, समझे, ये पूना मेनली करेंटली इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, currently in Maharashtra, known as Pune, okay, Pune, currently in Maharashtra and known as Pune, publish a book, इन्होंने एक बुक पब्लिश की, इन्होंने राइट एजुकेटेड है, ये पढ़ी, उस टाइम तक एजुकेशन हल्की फुल्की शुरू होती थी, तो इन्होंने पढ़ा, और इन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना, ठीक है। इस वर्ड का मतलब देखिए, इसका वर्ड का डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ मैं, ठीक है, इसको डिफाइन करना है। देखिए मेनली इसका डेफिनेशन वहाँ लिखा है, ये देखिए, कंपैरिजन बिटवीन मैन एंड वुमेन, कंपैरिजन बिटवीन मैन एंड वुमेन, इस बुक में यह लिखा है, एंड क्रिटिसाइजिंग दिस सोशल डिफरेंस, और इन्होंने क्रिटिसाइज किया, अपोज किया वुमेन और मैन के डिफरेंसेस, सोशल डिफरेंस, कैसे उनको जॉब नहीं करने दिया जा सकता है, वो बाहर नहीं जा सकती, उन्हें ये नहीं करना है, उन्हें ये नहीं करना है, तो इस बुक में यही बताया गया। अब देखिए हम लोग ने पढ़ा ताराबाई शिंदे के बारे में, ताराबाई शिंदे, शी इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रोल, जिन्होंने स्त्री पुरुष तुलना लिखी, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे पंडिता रामाबाई, अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत, ठीक है, मीन्स ये बहुत फेमस स्कॉलर्स थी, लेकिन के बारे में पढ़ते हैं। 99.
was a fearless critic of conservative ideas, arguing that religious leaders of every faith accorded an inferior place to women. By the 1880s, Indian women began to enter universities. Some of them trained to be doctors, some became teachers. Many women began to write and publish their critical views on the place of women in society. Tarabai Shinde, a woman educated at home at Pune, published a book, Stripurushtuna, a comparison between women and men, criticizing the social differences between men and women. Pandita Ramabai, a great scholar of Sanskrit, felt that Hinduism was oppressive towards women, and wrote a book about the miserable lives of upper caste Hindu women. She founded a widow's home at Pune to provide shelter to widows who had been treated badly by their husbands' relatives. Here, women were trained so that they could support themselves economically. ओके, सो पंडिता रामाबाई ये एक ग्रेट स्कॉलर थी संस्कृत की, ठीक है। संस्कृत की ये जो है ये पंडिता रामाबाई हैं जो ग्रेट स्कॉलर, संस्कृत की बहुत बड़ी ज्ञानी औरत थी, बहुत ज्ञानी औरत थी, जिन्होंने बहुत चीज़ जाना था संस्कृत में पहले वर्ड। और इन्होंने से सारे वेद मेनली देखिए क्या होता था कि मिडिवल एरा मीन्स मिडिवल एरा मीन्स इस्लामिक पीरियड जब उसमें आए तो देखिए जितने भी ये जब थॉट है बिल्ली रास्ता काट देगी सती प्रथा ये जितने भी ये सब मिडिवल एरा में आए। वरना आप अगर हमारा एंशियंट पीरियड देखेंगे जब में विक्रमादित्य अशोका उन लोग का राज था तब उसमें ऐसा कोई सॉरी ऐसा कोई भी थॉट नहीं था कि ये करना है वो करना है। मेनली वुमेन्स को रखा जाता था पर्दे के पीछे, लेकिन ये सब थॉट नहीं थे कि सती करना है ये करना है, इतने सारे बैकवर्ड थॉट्स नहीं थे, ठीक है। ये सारे थॉट्स आए मिडिवल पीरियड से। सो इसमें पंडिता रामाबाई जो हैं उन्होंने एक बुक लिखी दैट इज दैट इन्होंने बुक लिखी उसका नाम नहीं इसमें मेंशन है। और जो ताराबाई सिंधे थी उन्होंने भी एक बुक लिखी थी स्त्री पुरुष तुलना, ऐसे इन्होंने भी एक बुक लिखी जिसमें इन्होंने बताया कि कैसे हिंदुइज्म वुमेन्स की तरफ बहुत ऑपरेसिव बहुत मिसरेबल है, मतलब बहुत खराब है हिंदुइज्म मेनली ये सारे। और इन्होंने जब अपना ग्रंथ पढ़ा book and wrote a book about miserable life of upper caste of Hindu women. She founded a widow at home at Pune, provide a shelter to widows who had been treated badly by their husband's relative. Here women were trained so could support themselves economically. Mainly इन्होंने बुक पढ़ा और उन्होंने बताया हिंदुइज्म वॉज ऑपरेसिव टूवर्ड वुमेन, वुमेन के खिलाफ है। और wrote a book with miserable lives of upper caste Hindu women और upper caste Hindu women के बारे में एक बुक लिखी। She founded a widow, एक विडो को इन्होंने जिनकी बुक लिखी उसमें से एक स्टोरी की कोई कैरेक्टर है एक पूना में रहती है, उन्होंने बताया शेल्टर एट टू विडो, उन्होंने उसको शेल्टर दिया विडो को who had been treated badly by their husband's relative। और जो वो सह रही थी अपने हस्बैंड के रिलेटिव्स के द्वारा बहुत बैडली ट्रीट किया जा रहा था, उसको बहुत बैडली उसको कमेंट किया जा रहा होगा कुछ भी और कुछ भी होगा। हियर अ वुमेन वर ट्रेन एंड सो कुड देमसेल्फ इकोनॉमी ट्रेन सो कैन बी सपोर्ट। और तो उन्होंने उसको बताया उसको पढ़ाया तो ये वो ट्रेंड हुई और उसको अपने आप को वो उसने सपोर्ट किया। इन्होंने उस बुक में एक वुमेन की स्टोरी मेंशन की थी जिसके बाद में हियर वर ट्रेंड एंड सो दैट दे कुड सपोर्टेड देमसेल्फ इकोनॉमिकली, मीन्स वो भी कमा के अपने आप को इकोनॉमिकली सपोर्ट कर सके या कुछ काम करके। Needless to say, all this more than alarmed the Orthodox. For instance, many Hindu nationalists felt that Hindu women were adopting Western ways and that this would corrupt Hindu culture and erode family values. Orthodox Muslims were also worried about the impact of these changes. Okay, देखिए ऑर्थोडॉक्स जो टर्म है इसका मतलब है इसका ऑर्थोडॉक्स का मतलब है जो अपोज थे, जैसे कि ये लोग जो हैं ये लोग रिफॉर्मर्स हैं और ऑर्थोडॉक्स वो है जो अपोज कर रहे थे इन सब का।
अब आप जैसे कि अब कोई भी लॉ या एक्ट आएगा तो उसको लोग डायरेक्टली एक्सेप्ट थोड़ी ना कर लेंगे, उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा। वैसे ही ऑर्थोडॉक्स मीन्स ऐसे जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है, इसका ऑर्थोडॉक्स का मीन्स यही होगा। ओके। For instance, many Hindu nationalism means nationalists felt that Hindu women were adopting Western. मेनली जैसे कि इन्होंने अपोज करना तो शुरू किया, लेकिन इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे, बहुत सारे प्रॉब्लम, जैसे कि हिंदू नेशनलिस्ट, जो हिंदू के नेशनलिस्ट थे, जो इंडिया के लिए उस टाइम के भी रिफॉर्मर्स थे ना, तो उन्हें ये लगने लगा कि जो वुमेन है हिंदू, वो वेस्टर्न वेज अडॉप्ट कर रही हैं। वेस्टर्न वेज मीन्स जो यूरोपियन कल्चर्स है। सो ऑर्थोडॉक्स वाज थिंकिंग, उनको लगा कि उनके जो कल्चर वो करप्ट हो रहा है और उनकी फैमिली टूट रही है और उनके कल्चर की वैल्यू ख़त्म हो रही है। सो उन्होंने भी अपोज करना शुरू किया। ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम वर ऑल्सो वरीड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस, और इन्होंने जो मुस्लिम्स थे उनको भी ये चेंजेस पसंद नहीं आ रहे थे। तो उन्हीं में से जैसे कि सॉरी, मेनली इसमें यह कहा जा रहा है कि इसमें जो चेंजेस आए उसके बारे में बात की जा रही है। जो चेंजेस आए जैसे कि वुमेन्स घर से बाहर नहीं जा पा रही थी, घर से बाहर जा रही थी तो इसकी वजह घर का काम कौन करता। तो ये सब चेंजेस की वजह से मुस्लिम्स को बहुत सबको प्रॉब्लम है। इन्होंने बोला कि ये चेंजेस क्या इम्पैक्ट करिए, बहुत चेंजेस अचानक कोई भी सडनली चेंज होगा तो किसी को भी दिक्कत प्रॉब्लम्स होगी। सो ऐसे प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में। changes. As you can see, by the end of the 19th century, women themselves were actively working for reform. They wrote books, edited magazines, founded schools and training centers, and set up women's associations. From the early 20th देखिए century, एज यू कैन सी, अब 19th सेंचुरी के एंड में, इन सब के होने के बाद 19th सेंचुरी के एंड में जो वुमेन्स थी उन्होंने स्टार्टेड किया बुक राइट करना, मैगजीन में अपना पैम्पलेट्स छपवाना, स्कूल बना, स्कूल की स्थापना करवाना, ट्रेनिंग सेंटर्स की इस्टेब्लिश कराना, और सेटअप अ वुमेन एसोसिएशन मीन्स एक ग्रुप बनाना। और फ्रॉम सॉरी, फ्रॉम अर्ली 20th century, century, they formed political pressure groups to push through laws for female suffrage. हाँ, देन आप देखिए ये अर्ली 20th सेंचुरी में स्टार्टिंग ऑफ 1900, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दे फोर्स द पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल मीन्स जो सरकार में है, जो जिनकी रूल चलते हैं उस एरिया और उस कंट्री पे, उनको फोर्स करने लगी कि ये हमारे लिए ये सारे सफरेज हैं और इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसका कुछ करिए, मुझे हम लोग को लॉ चाहिए एंड बेटर हेल्थ चाहिए, राइट टू वोट चाहिए, एजुकेशन चाहिए। सम ऑफ देम जॉइन अ वेरियस काइंड ऑफ नेशनलिस्ट एंड सोशल मूवमेंट, उन्होंने बहुत सारे सोशल मूवमेंट और ये सब हुआ। उसके बाद 1920s तक ये सारे होते रहे, इतने सारे मूवमेंट्स ये सब होते रहे। The right to vote, and better health care and जैसे कि education मैंने for बोला women. अभी। Some of them joined various kinds of nationalist and socialist movements from the 1920s. In the 20th century, leaders such as Jawaharlal Nehru and Subhas Chandra Bose lent their support to demands for greater equality and freedom for women. Nationalist leaders promised that there would be full suffrage for all men and women after independence. However, till then they asked women to concentrate on the anti-British struggles. So 20th सेंचुरी तक लीडर्स थे, जैसे कि लीडर्स थे जो नेशनलिस्ट थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने लैंड किया और सपोर्ट किया डिमांड ऑफ इक्वालिटी, ग्रेट इक्वालिटी एंड फ्रीडम, वुमेन्स की फ्रीडम और इक्वालिटी के लिए नेशनलिस्ट लीडर प्रॉमिस दैट देयर वुड बी फुल सफरेज फॉर ऑल मैन एंड वुमेन आफ्टर इंडिपेंडेंस। इन्होंने बताया कि आफ्टर इंडिपेंडेंस सारी सफरेज सब खत्म हो जाएगी। हाउ एवर टिल दे आस्क वुमेन टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल, और तब तक आप हमारे सपोर्ट करिए और ब्रिटिश को भगाने में हेल्प करिए, ब्रिटिश को गवर्नमेंट को हटाने में हेल्प करिए, ये सब में हम लोग हटा देंगे, ठीक है। सॉरी। Struggles. Once a woman's ओके।
Woman's husband has died. हाँ, तो ये एक Women. ये जो स्त्री पुरुष जो ताराबाई सिंधन ने लिखा उसी में का एक पार्ट है। तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, छोटा सा पार्ट है। और आज इस चैप्टर की मेनली मैं 5 पार्ट्स बनाऊंगा। 5 पार्ट्स में मैं ये पूरे चैप्टर को ख़त्म कर दूंगा। देखिए देखिए इस चैप्टर के ना थोड़े चैप्टर ये बड़ी है, और ये चैप्टर बड़ी इस वजह से है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे अलग अलग थिंग्स है। और ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड हुई है। पहला एक वुमेन्स और दूसरा कास्ट। तो ये हाँ यहाँ पे ये जो कास्ट एंड रिफॉर्म्स है, यहाँ पे ये जो है ये ख़त्म हो जाएगा वुमेन का सेक्शन। उसके बाद कास्ट शुरू होगा जो मैं कल कंप्लीट करूँगा। सो आज हम लोग टिल यहाँ तक पढ़ लेंगे, यहाँ तक पढ़ लेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। ओके। Women, caste and reform. Fig. 7. पहले हम लोग यहाँ पे 1. 100 are past 3. Law against child marriage. With the growth of women's organizations and writings on these issues, the momentum for reform gained strength. People challenged another established custom, that of child marriage. There were a number of Indian legislators in the Central Legislative Assembly who fought to make a law preventing child marriage. In 1929, the Child Marriage Restraint Act was passed without the kind of bitter debates and struggles that earlier laws had seen. According to the Act, no man below the age of 18 and woman below the age of 16 could marry. Subsequently, these limits were raised to 21 for men and 18 for women. Caste and social reform. ओके। सो देखिए लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। अब जैसे कि इसमें वुमेन्स में और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा एंड ऑल दोज थिंग। वैसे ही ये लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज है। इसमें बताया जा रहा है कि विद द ग्रोथ ऑफ राइटिंग इश्यूज, ये जितने सारे लॉज ये सब जो रिफॉर्म होते रहे, तो उसी में से ये एक कस्टम है चाइल्ड मैरिज का। तो इस पे हमारे उस टाइम के ब्रिटिश सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बहुत सारी फाउट हुई, बहुत सारी फाइटिंग हुई कि ये लॉ पास होगा कि नहीं। तो फाइनली इन 1929 चाइल्ड मैरिज एक्ट पास हुआ। फाइनली चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिक्शन एक्ट वाज पास ऑफ सब बिटर इतने सारे अ, अ, उसके बाद, और उसके लिए चाइल्ड मैरिज एक्ट पास हुआ इतने सारे डिबेट और स्ट्रगल्स के बाद। अकॉर्डिंग टू एक्ट का जो अकॉर्डिंग टू एक्ट में 16 मतलब 18 का मैन बिलो, 18 मैन का एज 18 से बिलो, और गर्ल्स का एज 18 के ऊपर नहीं रहना चाहिए, मतलब एज 16 के नीचे नहीं रहना चाहिए तभी। और फिर ये लिमिट्स बढ़ गए, जो 21 मैंस के लिए 21 हो गया और 18। अब का करेंटली ये 21 दोनों के लिए एक ही है। ठीक है। ओके। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये लड़का कितना बड़ा है और ये बच्ची कितनी छोटी है और इसकी शादी हो गई है। तो ये सब उस टाइम पे सोसाइटी में होते था। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। टिल देन गुड डे। और मे बी आपको ये चैप्टर का ये वाला पार्ट अच्छा लगा हो।